This is the second unit of a class 12th physics, current electricity. In a previous unit, we discussed about the electrostatics, which having a two chapters. Chapter 1, charges and electric field, and second is potential and capacitance. So combine these two units having a total 16 mass weightage in a CBSE exam, and this is current electricity, this third chapter of the CBSE curriculum, which having a 7 mass in this, about the 7 mass in this unit. So let us start what is the, in previous chapter, a unit in a electrostatics, we learned the charge particle, theory of the charge particle at rest. And in a electricity, it is a theory of a charge particles in motion. So इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट में पढ़ा. जब रेस्ट है तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल कितना होता है, कैसे स्टोर करता है, और ये बातें सभी हमने उसमें पढ़े. अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में इट इज़ द थ्योरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए मोशन. दिस यूनिट include drift velocity, Ohm's law, then series parallel of the resistance, internal resistance of the cell, Kirchhoff's law, meter bridge and potentiometer. These are the some important articles. Actually this is a small unit, एक छोटा सा यूनिट है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आता है इसमें. तो चलो शुरू करते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी. So electricity is a charged particle in a motion. Electricity is a charged particle in a motion when charges flows across the conductor. When charges flows across the conductor, known as current electricity. So current electricity means charges flows across the conductor is known as a current electricity. Means in a electricity the motion of the charges across the conductor. So actually what is the current then? Electric current it is denoted by capital I. So this is a current is a rate of flow of the charge dq by dt, या I is equal to charge per unit time. So charge is a q, time t, and unit of the q it is a coulomb, or this is the time in a second. So current is said to be 1 ampere. Current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of a charge passes in a 1 second. 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज जाता है तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर. इसी को बोलते हैं 1 एम्पियर. सो दिस Q इज इक्वल टू IT और इक्वल टू N into E. दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला to calculate the charge, current, time, number of charges in this way, where the N is a number of charges या number of electrons, and E is a charge on each electron 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. तो जब हमें कितना टाइम में कितना चार्जेस फ्लो हो गया, करंट कितना है, नंबर ऑफ चार्जेस, ये सब निकालना है. तो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन यूज दिस फार्मूला. Q इज इक्वल टू IT इक्वल टू NE. सपोज वी हैव टू कैलकुलेट
if it is asked to calculate number of charges passes in a particular time, so this is n is equal to it divided by E or Q divided by E. Means if current is a known, time is a known, then number of charges we can calculate here. Total charge divided by charge on a one electron, then number of charges we can find out. So this is the about the electric current. So current is a rate of flow of the charge across the conductor. This is known as a electric current. Electric current, the another term, this known as a drift velocity. तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा अभी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट आर्टिकल. इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं. डिराइव द एक्सप्रेशन और डिराइव द रिलेशन, ऐसे हमेशा क्वेश्चन आता है. डिराइव रिलेशन, डिराइव द रिलेशन R इज इक्वल टू ml n E square A into this tau. The symbol having their usual meaning, derive the relation. इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है. तो ये क्वेश्चन रिलेटेड व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज रिलेटेड टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, related to the drift velocity denoted by V suffix, this is a D, drift velocity. What is the drift velocity? It is a average velocity, the average velocity of electrons drifting मतलब shifting from one place to the, it is the average velocity of the electron drifting from one end of the conductor, one end of the conductor to another under the influence of external electric field. External electric field, this known as a drift velocity. Average velocity, suppose this is the conductor, of length of this conductor is a L, and the external potential E is applied across the conductor. So external electric field E is applied across the conductor. So when this is the drift velocity, average velocity of electron drifting, this is negative terminal to the positive terminal. So drifting of this electron from negative terminal, this is the negative terminal to the positive terminal under the influence of a external electric field. So electron move from the negative terminal to the positive terminal, but in a electricity, the conventional current, it is always indicated from the positive terminal to the negative terminal. This is the direction of the electron, this is the direction of a electron opposite to the direction of the current, means this is motion of the electron, motion of a electron from negative to positive terminal, but direction of the conventional current always indicated from positive terminal to the negative terminal, and this is the direction of electric field, this is the direction of a electric field along this direction. So motion of the electron is at just opposite the direction of a electric field. कहाँ जाएगा? ये नेगेटिव है तो it goes to the positive terminal of a battery.
अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग यहाँ से वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड, यहाँ से यहाँ जाता है, वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द another under the influence of a external electric field, this known as a drift velocity. So this electrons, when it passes from the one terminal to the another, due to this a current I is equal to Q divided by this a T, yeah, Q is equal to IT, Q equal to IT. So this a Q equal to IT or this equal to यानी, then drift velocity when potential E is applied across the conductor, so an electric field E equal to V divided by L, electric field E divided by L, or suppose they say charge density is Q, N, small n, and charge on each electron is E. So total charge in a conductor equal to charge density into, it is distributed over the volume, so it is written as a charge into the volume. So the total charge is a Q equal to N is a charge density, volume is a conductor, it is circular, so volume is a A into L, volume equal to A into N. So total charge, this is the total charge, or charge on each electron is a E, so total charge on a conductor E into N into L. So this is the एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द कंडक्टर, मतलब डेंसिटी मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो ये हो गया ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है. सो दिस इज द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू ये. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन पासेस अक्रॉस द कंडक्टर, जब ये इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ से यहाँ, दे एक्सपीरियंस द फोर्स experienced by the electrons equal to F is equal to a charge E, and in a electric field F is equal to E into capital E, this charge on electron into electric field. This sign minus indicates the direction, this force experience is a opposite to the direction of electric field E. This is the meaning of this A, or this equal to, this value is a equal to F into E. Just motion of the electron is opposite to the direction of electric field, or this is a charge on the electron, it is a negative, so this is a minus, but there is a E, electric field, and motion of electron opposite in direction. So this will become say positive, F equal to, we can take this as a E into E. So this is the, due to the negative sign is a charge on the electron is a minus, और ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, the direction of electron is opposite to electric field, so this will be a, we can say force becomes a positive, the force becomes a positive. Then acceleration, this equal to force divided by mass, according to the Newton's second law, F is equal to ma, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई मास, यहाँ से हम इसको ये लेंगे.
अब फोर्स कितना है एक्सेलरेशन का, यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू एफ डिवाइड बाई यम, और f का e इंटू कैपिटल E डिवाइड बाई यम. दिस इज द एक्सेलरेशन and use the equation, first equation according to the first equation of motion, first equation of motion, Vd, let's say V is equal to U plus At. यहाँ this is the Vd is the drift velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration, and this is the tau is known as a relaxation time. टाइम इज ए रिलैक्सेशन टाइम. तो पहले टर्म का मीनिंग समझ लो. दिस इज द सिंबल फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज यू इनिशियल वेलोसिटी व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. जब कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया तब इसका वेलोसिटी, दिस इलेक्ट्रॉन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज अ रैंडम, दे आर मूविंग इन ए रैंडम डायरेक्शन. So this resultant velocity, initial velocity u equal to u1 plus u2 plus this is a un divided by n, this is u equal to 0. Initial velocity is 0 because motion is a random, there is a not in a one particular direction, कहीं भी random direction move करता है. तो initial velocity, average initial velocity is a 0. और ये इज एक्सेलरेशन जो हमने यहाँ लिखा एक्सेलरेशन. एंड टाउ दिस इज ए रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम मीन्स व्हेन जब इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द कंडक्टर मूव होता है तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा. किसे आयंस एंड मॉलिक्यूल्स और एटम्स के साथ कोलाइड करेगा, मॉलिक्यूल्स से कोलाइड करेगा, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा. तो वेलोसिटी, सम वेलोसिटी विल बी, दे विल बी लॉस्ट. तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अक्रॉस द कंडक्टर, दे कोलाइड्स विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. यहाँ लिखते हैं अभी. So during the collision they lost some kinetic energy, and so this value ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू ए प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखते हैं. एक्सेलरेशन E कैपिटल E डिवाइड बाई m इनटू दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम tau. सो Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू E m into tau. This is the drift velocity, expression for the drift velocity. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, उसके बाद ये आएगा दिस टाइम इक्वल टू टाइम, एक एंड से दूसरा एंड में जाने के लिए कितना टाइम लगता है. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड. डिस्टेंस कितना है यल, एक एंड से कंडक्टर का एक एंड से दूसरा एंड में जाने के लिए टाइम लगता है. दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर यल, एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो रहा है ऐसे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने डिस्टेंस कितना है यल है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल. तो एंड स्पीड कितना है इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब देखो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, और यहाँ लिखेंगे स्पीड इक्वल टू एल इंटू एंड करंट I इक्वल टू Q डिवाइड बाई टाइम t. और ये टाइम का जो वैल्यू है यहाँ देख लिखते हैं तो क्या आएगा Q डिवाइड बाई एल डिवाइड बाई Vd. This value is substituted here. So I equal to total charge, कितना टोटल चार्ज, दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल चार्ज E n A इंटू एल डिवाइड बाई एल, और ये Vd ऊपर जाएगा, दी एल गेट कैंसल्ड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस करंट I is equal to n E n
ए इंटू वी डी। तो यहाँ E इज द चार्ज, N क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड वी डी। सो दिस टर्म इज अ कांस्टेंट, सो I इज ए directly proportional to the drift velocity. Current, it is a directly proportional to the drift velocity, means जब करंट बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो करंट अपने आप बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा पास हो गए तो करंट इंक्रीजेस, current is increases when drift velocity increases. So in this way current equal to ये वैल्यू हो गया, और current is a directly proportional to drift velocity, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, कभी कभी इस यहाँ तक ये पूछता है, शो दैट current is a directly proportional to the drift velocity. Current in a conductor is a directly proportional to the drift velocity. अब यहाँ करंट I इक्वल टू, कहाँ लिखे, यहाँ लिख दिए, I इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू रखेंगे E n A इंटू दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, कहाँ लिखा हमने ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस वैल्यू वी डी इक्वल टू दिस फ्रॉम द इक्वेशन 1, E कैपिटल E डिवाइड बाई m into this tau. So I equal to n E स्क्वायर A, ये मल्टीप्लाई किया, E की जगह लिखेंगे V डिवाइड बाई L, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो V डिवाइड बाई L आएगा, डिवाइड बाई m इंटू टाउ। अब V इस साइड लेके आएंगे तो I डिवाइड बाई V इक्वल टू n E स्क्वायर A टाउ डिवाइड बाई m L। इसको उल्टा करते हैं, V डिवाइड बाई I उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, I V डिवाइड बाई I आएगा, जस्ट इसको उल्टा किया तो इक्वल टू m L n E स्क्वायर A इंटू टाउ। So this term is, this ratio is known as a resistance. So R equal to V divided by I, it is a resistance ml Ne square A into tau. तो यही रिलेशन था जो 3 मास के लिए पूछा था डिराइव करने के लिए, तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं ऐसे ही m इंटू ये। अब ये पार्ट दोबारा एक बार रिवाइज करता हूँ, फर्स्ट किस तरीके से, तुम्हें कितना ध्यान में आया पता नहीं। तो देखो, व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यार, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछते हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी पहला पार्ट है और उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द अमाउंट ऑफ the average velocity of a electrons drifting from the one end of the conductor to the another end under the influence of the electric field. मतलब drifting of the electrons from the one end of the conductor to the other under the influence of a external electric field, this known as a drift velocity. The average velocity at which drifting of the electron, average velocity at which drifting of the electron from one end of the conductor to the other under the influence of the external electric field. This average velocity is known as a drift velocity. तो ये जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और ये रिलेशन हमें डिराइव करना है, तो इसके कितना अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो E इज इक्वल टू, पहले हमने इसको लिखा E इक्वल टू, और दिस E इक्वल टू V डिवाइड बाई L। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये डेरिवेशन पढ़ा था, V डिवाइड बाई L, E इक्वल टू, सो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद Q इज इक्वल टू दिस चार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दिस इज I फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट,
which is just opposite to the motion of the electron, or conventionally current is denoted along the direction of electric field or motion of the electron from negative terminal to the positive terminal opposite to direction of the conventional current. कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू क्या दिखाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल दिखाते हैं. तो I इज इक्वल क्यू डिवाइड बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी इंटू एन ई. तो ये जो है एक एक्सप्रेशन है कि Q इज इक्वल टू आई टी इंटू एन ए. तो I करंट है, T टाइम है, एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस और एक के ऊपर कितना चार्ज है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई एल. उसके बाद चार्ज डेंसिटी मतलब अगर हमें इतना पार्ट है तो इसमें कितना चार्जेस है, तो चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम दिस नोन एज चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी इज एन. चार्जेस ऑन द ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, छोटा एन ई. सो टोटल चार्ज इक्वल चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो टोटल चार्ज डेंसिटी कितना है, एन है, वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल. ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, द लेंथ, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द टोटल चार्ज. तो टोटल चार्ज कंडक्टर ये इतना है. तो हर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव होता है, क्यों मूव होता है, तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, एफ इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई. ई का मतलब है दिस चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इसीलिए माइनस रखा. लेकिन जब ये पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन इज ए अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई. ये पॉजिटिव वैल्यू रखा. और ये अगर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं तो एक्सेलरेशन आएगा. कितना एक्सेलरेशन, एफ डिवाइड बाई एम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ. एफ कितना है, ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम. फर्स्ट लॉ क्या है, तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वी डी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ इट इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो इट इज रिटन एज ए वी सफिक्स डी इक्वल टू यू ए प्लस दिस टाउ. यू इज ए इनिशियल वेलोसिटी, tau this is a is acceleration, tau is a relaxation time, this known as a relaxation time. So relaxation time means time lapse, time between two successive collision, this known as a relaxation time. It is denoted by tau. Initial velocity of electron, जो when no electric field is applied across the conductor, they are moving in a random direction. सभी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो देयर एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो u इक्वल टू 0. तो ये वैल्यूज रखा, u इक्वल टू 0 हो गया. और यहाँ एक्सेलरेशन के वैल्यूज पुट किया तो ये वी डी इज इक्वल टू ई इंटू ई कैपिटल ई एम टाउ डिवाइड बाई एम. ये रिलेशन हो जाएगा. वी डी इज इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई सी स्पीड. तो कितना डिस्टेंस गया ये एल, स्पीड कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड करंट इक्वल टू चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टाइम. तो टोटल चार्ज कितना, ये वैल्यू रखा टोटल चार्ज का जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ये रखा. तो एल कैंसिल हो जाएगा, ये वी डी ऊपर चला जाएगा. तो आई इज इक्वल टू छोटा ई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया इंटू वी. सो वी इज ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्टिंग ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये कभी कभी यहाँ तक ये रिलेशन पूछते हैं, तो इसको याद रखना आसान से. उसके बाद आई इज इक्वल टू ई एन ए, ये वैल्यू वी डी का वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट किया, और ई का वैल्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल वी डिवाइड बाई एल. वी को इस साइड में लेके आए तो क्या एन ई स्क्वायर, ये इसको उल्टा करेंगे तो वी डिवाइड बाई आएगा इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ. सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर
R, this V divided by I is a resistance. This ratio is known as resistance according to Ohm's law. So R is equal to resistance equal to ml n E square A into tau. This is the relation. So resistance of a conductor, this is m is a mass of the electron, L is the length of the conductor, n is a electron density, E square, this is the E is the charge of the electron, area of the cross section, all these terms are constant. So R is a inversely proportional to the tau. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर टाउ इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, टाउ डिक्रीज हो गया तो ये डिक्रीज होता है. जैसे अब कोई कंडक्टर है और उसमें हीट प्रोड्यूस हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन मोशन है वो दे विल दिस मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी फास्टर. ज़्यादा फास्ट हो गया तो उनका कोलिजन भी उतना ही फास्ट हो जाएगा. जब कोलिजन फास्ट होगा तो टाइम लैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच वाला जो अंतर है वो कम हो जाएगा. ये कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा. मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा. रेजिस्टेंस वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस एंड दिस टाउ दिस विल बी ए डिक्रीज्ड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज. टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेस. क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि टाइम लैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एक छोटा होगा क्योंकि द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी फास्टर, तो उनका दो कोलिजन का बीच का अंतर कम हो जाएगा. जब ये कोलिजन का अंतर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टाउ कम हो जाएगा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस. दिस इज द रिलेशन. थैंक यू. इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और आगे का इसमें आगे का ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.